Hello, good evening, everyone, uh, and welcome to the platform of Ahmedabad Book Club and Karma Foundation. Ahmedabad Book Club, which is one of the many gemstones in the crown of Ms. Priyanshi Patel and Mr. Chiranjeev Patel, is nurtured by its family members with their love for literature. I, your host and friend Kosha, author and secretary at Ahmedabad Book Club, welcome you all my family members, friends, and viewers. Today we are here with yet another story, yet another chapter with yet another phenomenal personality who has naturalized the satellite broadcasting sector since last 45 long years, Mr. Ajib Gupta. Sir, first of all, bow down to you and honored to be sheltered under your knowledge. And welcome to the platform of Ahmedabad Book Club and Karma Foundation. And we are very fortunate that you'll be sharing with us your experiences today. And a sweet hello to Mrs. Suman, a very sweet and smiling lady. Welcome, sir. Thank you so much, Kosha. I must thank Ahmedabad Book. I must thank Cosmos, Kosha, the well-known author, and of course Rajesh, and uh, who have introduced me to Okay. you, and it's really an honor and opportunity for me to talk. Okay. So Ahmedabad Book Club has been doing these activities, and today we are really fortunate to have you sharing your experiences, 45 long years, sir, in which you have achieved a lot of things and you have laid foundation in the satellite broadcasting sector, especially in health, wellness, and spirituality. You started with, to tell my viewers a little bit about you. Mr. Ajit started with ISRO Ahmedabad as an announcer and producer at Ahmedabad. So, Apnu Ahmedabad, Apna Gujarati also you are, apart from being Gupta. Yeah, Right. that's correct. It was an experience actually. I would say कि 45 years अभी मैं बैठ के जो बात कर रहा हूँ, it looks that it was just yesterday. Yes. मेन चीज क्या है जो दिमाग में रहती है, वो हर Hmm. वो चीज दिमाग में रहती है जो पहली बार होती है. हर Correct. चीज जो पहली होती है वो दिमाग में होती है. एंड मेरा सही है. पहला काम, मेरा कैरियर की शुरुआत, मेरा पहला प्रोफेशनल दिन वो अहमदाबाद से शुरू होता है. इसलिए So, अहमदाबाद तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. और व्हेन आई स्टार्टेड माय कैरियर फ्रॉम अहमदाबाद, तो वो yeah. इतना खूबसूरत शहर था उस Hmm. वक्त. आई एम टॉकिंग अबाउट 1975. और Right. 1975 में जब मैं अहमदाबाद आया, इट वाज सच अ ब्यूटीफुल प्लेस. और वहाँ पे नई जगह थी जोधपुर टिकरा. और Right. जोधपुर टिकरा, वहाँ पे स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, सैट कहते थे उसको, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, Yeah. जहाँ से Yeah. इसरो ने सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट का प्रोजेक्ट शुरू करना था उस वक्त. शुरू किया था. और Correct. that was called SITE project, Satellite Okay. Instructional Television Experiment. It Okay. was still on experimental stage. उससे पहले सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट के लिए कभी भी यूज नहीं हुई थी. एंड इट वाज एन अमेरिकन सैटेलाइट कॉल्ड ATS-6. और वहां से ही हम लोगों ने शुरू किया. कोशा, Okay. आई मस्ट टेल यू समथिंग कि आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आई मस्ट रियली थैंक यू फॉर दिस, कि जो एक साल अहमदाबाद से मैंने अनाउंसमेंट भी की है सैटेलाइट से. और Yeah. Yeah. मेरा टाइम होता था शाम को 6 बजे. और 6 Okay. बजे
मुझे तैयार होके अपने और कामों से 6 बजे आना पड़ता था, तैयार होके कैमरा के सामने, और कैमरा भी बहुत बड़े बड़े होते थे, और कैमरा के सामने खड़े होके बोलना होता था, नमस्कार, हम दूरदर्शन से बोल रहे हैं, बिकॉज इट वाज आकाशवाणी का दूरदर्शन, राइट। करेक्ट और वो ब्रॉडकास्ट होता था पूरे कंट्री के अंदर, बिकॉज दैट वाज सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट। और उसके ठीक आधे घंटे के बाद गुजराती ट्रांसमिशन शुरू होती थी, और गुजराती जो चैनल था वो टेरेस्ट्रियल से जाता था, एंड दैट टेरेस्ट्रियल टावर वाज इन पीच, राइट, खेड़ा, पीच, और उसको हम लोग दूरदर्शन पीच कहते थे। अच्छा, राइट। तो एंड उसकी अनाउंसमेंट शोभा मोदी करती थी और मंसूरी करते थे, आ दूरदर्शन पीच है, हवे જોઈએ આજની કાર્યક્રમોની રૂપરેખા। अरे गुजराती सर, खाने में क्या पसंद था अहमदाबाद का? ओह, अहमदाबाद, सी, हम लोग तो मतलब मैं तो नया नया एनएसडी से पढ़ के गया था वहाँ पे, और वहाँ पे हम लोगों को कोई हमारा कोई घर नहीं था, क्योंकि सोसाइटी में हम लोगों को जैसे 2-3 लड़के थे, राइट। तो जैसे केतन मेहता, मैं और इस तरह से कुछ लोग जो थे, तो हम लोग को सोसाइटी में घर नहीं, तो हम लोग इधर उधर खाना खाते थे रेस्टोरेंट में, तो हम लोग का मंथली चलता था हैवमोर में। अच्छा ओके। तो अभी वो तो हम लोग सर चेंज हो गया। हाँ, तो वहाँ जाते थे, एंड वहाँ पे मुझे पहली बार पता चला कि अरहर की दाल को तूर की दाल कहते हैं। कई दिनों तक मैंने वो दाल नहीं खाई, क्योंकि मुझे लगता था ये कुछ और है, यू नो। सो देन तो लेटर आई वाज रियलाइज्ड कि ये है। तो वो एक प्रोफेशनल जो एटमॉस्फेयर अहमदाबाद में क्रिएट हुआ टेलीविजन को शुरू करने के लिए, एक तरफ था गुजरात का टेलीविजन शुरू करना, और दूसरी तरफ था सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट पूरे नेशन के अंदर उसको लेके जाना, उस एक सिग्नल को। तो दिस वाज द एक्सपीरियंस। और वहाँ पे ऐसे बड़े बड़े जो नाम थे, हम लोगों ने उस वक्त इकट्ठे काम शुरू किया था। तो उसमें हसमुख बराड़ी करके थे, जो बहुत बड़े फिल्म मेकर हुए हैं गुजरात के, बट वी स्टार्टेड आवर वर्क टुगेदर, और इस तरह से। जी, अमेजिंग, या। हाँ, तो उसमें ये बड़ा इंटरेस्टिंग था कि हम लोग का एक बहुत अच्छा ग्रुप बन गया था। दर्शन दवे, आदिति देसाई, भरत दवे, ये सब जो है ना, हम लोग सब एक साथ काम कर रहे थे उस वक्त, और सबके मन में कुछ ना कुछ करने की इच्छा थी। अब उस समय जो मशीन्स थी, उसके जो टेप्स, जैसे वीडियो टेप्स होते हैं, वो ऐसे बड़े बड़े टेप्स होते थे, राइट। तो अब जैसे दूरदर्शन जो यूज करता था, वो 2 इंच टेप यूज करते थे। तो 2 इंच टेप जो उसके अंदर 50 मिनट्स की रिकॉर्डिंग होती थी, और उसका जो वेट होता था 8.5 किलोग्राम। So that used to be the tape, right? तो वो उसके बाद आज तो टेप ही खत्म हो गई है। There is no tape. We can just broadcast anywhere, from anywhere to anywhere, right? तो उसके अंदर ये एक बड़ा डिफरेंस था। तो वो वक्त अहमदाबाद का वो खूबसूरत टाइम, जब सब लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया था, आज वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया। And there was starting phase of your career, so definitely that is an experience which you'll remember for the lifetime. Definitely, yes. Sir, here I would like to say that the Vice President of this Ahmedabad Book Club, Nikita Shah, she is currently working with Akashvani. Sorry? The Vice President it was Akashvani. Yeah, she's working with Akashvani right now. Okay. That's very nice. Okay, so from there you went to Delhi
Doordarshan Kendra at Delhi. There you worked for a while. And before earning your credentials and with your fantastic work at different big-headed channels, the TV है, जिसका even to my amusement, CMM Music and Asia Music is your brainchild. And you even worked with Foreign Ministry, Women and Child Development of Government of India, and Directorate of Film Industry, Film Festival of Directorate of Government of Film Festival. Festival, yes, Directorate of Film Film Festival Festivals. of Government of India. So all this put together, and then you are the founder of Asia's first satellite broadcasting spiritual channel, Astha channel, and the health and wellness. Spiritual channel. Astha, and the health and wellness, that is Care World TV channel. Care World. Both, with your experiences, with your thought process, you made it look on screen in such a way that the audience felt to gain the benefit from the knowledge these channels presented. And right now you are an assistant or advisor to fact teller editor, and also developing the Turtle app, which is about jokes and some movie reviews. So you are always on your No, actually, the only emotion behind the entire thing is, if you look at the chronological development, हर वो चीज अच्छी लगने लगती है जो शायद पहले किसी ने ना की हो। सही है। और अगर मैं वही चीज, मेरे मन में कुछ ऐसा आता है, अगर मैं वही चीज कर रहा हूँ जो पहले किसी ने की हुई है, तो वो मी टू वाला काम जो है, मुझे उसकी किक नहीं मिलती है, I mean, उसका नशा नहीं आता है उस काम का। तो उस काम को एंजॉय करने के लिए अगर कोई ये कहता है कि हाँ ये पहले ऐसा किसी ने नहीं किया था, I feel so good, I can't tell you. Of course. तो जैसे Nikita, you said Nikita was working in Akashvani. She is working. तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि आकाशवाणी जो है, इस पूरे इंडियन ब्रॉडकास्ट सिस्टम में आकाशवाणी ही सबसे बड़ा सेंटर पॉइंट रहा है। करेक्ट, राइट। आज की डेट के अंदर अगर आप ये पूछे कि जब दूरदर्शन शुरू हुआ था, तो दूरदर्शन शुरू करने के लिए इंजीनियर्स कहाँ से आए थे? They all came from आकाशवाणी। Okay. All right. अब प्रोड्यूसर्स कहाँ से आए थे? वो भी रेडियो से आए थे। Okay. स्क्रिप्ट राइटर्स कहाँ से आए थे? वो भी रेडियो से आए थे। तो जो हम लोगों की सोच थी, वो रेडियो की टेक्नोलॉजी से हम लोग सोचते थे और फिर उसको ट्रांसलेट करते थे वीडियो पे। ओके। तो परफेक्ट। अब कोई कॉन्सेप्ट, कोई थीम या फिर डायलॉग्स लिखना, या फिर हम लोग हमेशा सोचते थे, क्योंकि जितने भी लोग आए थे वो रेडियो से आए थे। राइट। तो अब रेडियो में जब रेडियो शुरू हुआ था, तो लोग कहाँ से आए थे? थिएटर से। अच्छा। So basically all theater artists. तो जितने भी रेडियो के थे उनका थिएटर बैकग्राउंड था, जिन्होंने आकाशवाणी को स्टैब्लिश किया। राइट। चाहे गंगा प्रसाद माथुर हैं या दोज डेज, तो वो लोग जो सेटअप कर रहे थे, पीवी कृष्णमूर्ति, ये इन सब का बहुत बड़ा थिएटर का बैकग्राउंड रहा है। और थिएटर से ये लोग आए रेडियो, फिर रेडियो से लोग टेलीविजन पे गए, और टेलीविजन के बाद कई लोग ब्रांच आउट करने लगे सिनेमा में। राइट। देयर आर मेनी पीपल जो चाहे वो शाहरुख खान ही क्यों ना हो, पहले तो टीवी में ही था,
हाँ, तो Of वो course, of course. हाँ, तो वो भी सिनेमा में गए। फिर क्या हुआ कि सिनेमा से लोग वापस टेलीविजन में आने लगे, Right. और टेलीविजन में आते आते अब वो लोग रेडियो पर. ओटीटी पे आ गए, वेब सीरीज पे आ गए। यानी Right. उनको Right. अब टेलीविजन ब्रॉडकास्ट से कोई लेना देना नहीं, थिएटर नहीं है. रिलीज से कोई लेना देना नहीं। दे आर कन्फाइंड Correct. टू एन ऐप। तो दिस इज द Agree. जर्नी इन इंडिया। Hmm. और Hmm. हर स्टेज पे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, हर स्टेज पे सोच बदलने लगती है। बदलने लगती. सही है. वो तो जितने जितने नए लोग जितना टाइम उसका नजरिया, बदलने लगता है. हाँ, उसका नजरिया बदलने लगता है। हर चीज वही है, लेकिन उसके सोच का नजरिया, उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो बिल्कुल Correct. अलग अलग होता जाता है। और जिस Agree. दिन किसने वो पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखा जो पहले किसी ने नहीं रखा था, तो कहते हैं वो प्रोग्राम हिट हो गया। Right. Agree. है? So same with radio, तो television, इस समय, any medium of. हाँ, तो इस समय हमारी स्ट्रगल कहाँ पे है? स्ट्रगल है कि कुछ चीज ऐसा करना जो पहले किसी ने ना किया। किसी ने ना और किया. सही है. हाँ, तो अब ये जैसे जैसे डेवलपमेंट होती रही टेक्नोलॉजी की, उसी उसी तरह से सोच बदलती रही, प्रेजेंटेशन बदलती रही, यहाँ सही तक है. कि कोशा लैंग्वेज बदलती रही। Right. Right. तो उस लैंग्वेज के अंदर जो एड्रेसिबिलिटी है, अब वो चेंज हो रही है। करेक्ट है? अब Correct. अगर यही यही चीज मैं 75 में बात करता, तो शायद हाँ. मैं आपको कोशा जी कह रहा होता। Correct. Agree. करेक्ट है? सही. और सही है. हाँ, और आज की डेट में हाय कोशा, Right. तो ये देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ लैंग्वेज। Correct. तो Even few words which meant earlier something else, like right now are considered something else. Even the language transformation, addressing people, that transformation, everything has undergone transformation in this entire years, 45 years, sir. आपने तो सब कुछ देखा होगा. Sir, tell me of अब your मेरा एक first सवाल, baby. After then. Yeah, अब yeah, मेरा एक please, सवाल please. है, मेरा एक सवाल मेरे मन में आता है, तो आई थॉट दिस इज द राइट फोरम टू आस्क कि हमारे Yeah. पास रिटन हिस्ट्री है 2000 इयर्स की। करेक्ट है? Correct. Yes. 2000 ईयर की रिटन हिस्ट्री है, लेकिन पिछले 50 साल में जो हुआ वो पिछले 2000 साल में क्यों नहीं हुआ? बराबर. Because change in अब 50 people's साल पहले thinking. भी, हाँ, Change अब in 50 people's साल thinking. पहले, Yeah. आई डोंट नो, आई मीन दैट इज समथिंग आई एम स्ट्रगलिंग विद, कि वो थिंकिंग अकबर के वक्त क्यों नहीं आई? राइट? जब इतने सारे ब्रिटिशर्स घूम रहे थे इंडिया के अंदर, तो क्यों नहीं आई वो थिंकिंग? तो ये जो डेवलपमेंट हुई है टेक्नोलॉजी में, मुझे अच्छी तरह याद है कि अहमदाबाद से दिल्ली जब मैं अपने पेरेंट्स को फोन लगाता था, तो मेरे को थर्ड डे जाके कॉल मिलती थी। अच्छा. ओके. और फिर किसी को कहा कि देखिए मैं टेलीविजन में काम करता हूँ, तो उसे थोड़ा सा जिसे कहते हैं जान पहचान बना के, तो उसने मेरे को कॉल दूसरे दिन देनी शुरू कर दी थी। अच्छा. ओके. और अभी क्या हो रहा है कि आप यूएसए
या वर्ल्ड में कहीं पे भी बात करते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। Correct. Correct. और Within जब मैं fraction of अहमदाबाद seconds. से और अहमदाबाद से जब मैं दिल्ली फोन करता था, तो उस वक्त मुझे अच्छे से याद है, 6 rupees a minute, Okay. right? 6 So I had to rupees. pay 18 rupees for 3 minutes. Oh. Oh. Just to say hi, hello to your parents. Yes. तो ये एक तो उस वक्त मैंने अहमदाबाद में, दिल्ली में घोड़ा गाड़ी चलते हुए देखा, जिसे हम तांगा कहते थे, Correct. राइट? वो सब So कहाँ चला yeah, गया? right. Right. और उस समय, और इस तरह से अगर आप कंपैरिजन करना शुरू करें, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो अब है ही नहीं। Sure. Right. करेक्ट है? तो पहले जो हम लोग अपने ब्रीफ केस में, जब मैं गवर्नमेंट में काम करता था, तो मेरे ब्रीफ केस में एक कैलकुलेटर होता था, एक इंच टेप टाइप की चीज होती थी, इस तरह से छोटे छोटे बहुत सारे गैजेट्स होते थे। अब वो सारे के सारे एक ही डिवाइस पे आ गए, मोबाइल पे। तो मोबाइल सही है। डिवाइस पे आ गए, तो अब वो सही है। सारी चीजें बेकार हो गई। मुझे अच्छी तरह याद है कि हम लोग जब न्यूज सुननी होती थी, तो उस 9 o'clock न्यूज की बहुत सेंसिटिव थी, राइट? 9 o'clock Right. ऑल इंडिया रेडियो जो है हम लोगों के लिए, वो हाँ। बस ऐसा था कि कुछ भी कर रहे हो, 9 o'clock रेडियो ऑन कर लो, ऑन कर लो। और Excuse सर उसमें वो पर्टिकुलर एड्स आती थी, वो बड़ा सा राउंड आता था और कलर वाला, और ऐसे ओपन और क्लोज होता था, एंड देन यू हैड 2-3 एड्स विच मतलब few years नहीं, back एड्स, in my childhood. एड्स तो बहुत बाद में शुरू हुए हैं। हाँ, मतलब मेरे बचपन की एड्स मैं बहुत बात बाद कर में रही शुरू, हूँ। हाँ, आपके तो मुझे उस समय तो हमारे यहाँ एड वगैरह कुछ भी नहीं होता था, तो 9 बजे का जो न्यूज है वो सुनने के लिए इट वाज लाइक कि उसके सिवा लाइफ में कुछ नहीं है। और कुछ फिर नहीं। मैं अब एड की बात कर रहा हूँ, तो एड कैसे करते थे कि एक कार्डबोर्ड होता था, उसके ऊपर एड चिपका देते थे, और उसको कैमरा के सामने एक फ्लिप बॉय रखते थे हम लोग। ओके। और जो फ्लिप बॉय Okay. था, तो हम लोग हाँ। जैसे ही सिलेक्ट करते थे एड, तो वो क्लिक किया, और फिर वो फ्लिप बॉय उसको फ्लिप करता था, पीछे एक और ऐड आ जाता था। अच्छा। ओके। तो अगर आज सोचे तो एवरीवन सेज ये बड़ा प्रिमिटिव है, राइट? Right. लेकिन उस Right. वक्त वो बहुत एक जबरदस्त high टेक्नोलॉजी end, थी, हाई एंड। obvious. Well, I'm working with a program where ads are taken. Okay. And sir, about Astha channel, your baby. Yeah. Tell us about Yes. it. How did you come up with that idea? You know, which people still don't think. एक बार भी वो दिमाग में डाउट नहीं आया कि ये चैनल चलेगा कि नहीं चलेगा, कुछ भी. And you just got up that spirit. Yeah, if I tell you something which I have not discussed anywhere. Okay. ये जब मैंने शुरू किया तो everyone thought that I am very spiritual. Okay. And everyone thought that I am doing service to the nation. Okay. Actually, I saw a huge business opportunity. अच्छा. Okay. And I found आपने niche देखा. You saw the niche sector. niche देखा, और हाँ, और इसके अंदर मैंने देखा कि there is huge business potential. And this particular, I started thinking that this is an industry. Now, Okay. why it is an industry?
because there are many people involved in it, be it tour operators, right, be it garment manufacturers, जो ये बहुत सारी चीजें बनाते हैं, जो I am not talking about puja path. Yeah. I am talking about that is also a misconception among the people, spirituality and the rituals, God. Ritual. I am not talking about ritual. No. So I am not talking about ritual. So ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक सर्कल है जहाँ पे, एंड देन सबसे बड़ा जो था इसमें था बुक पब्लिशर्स. अच्छा, ओके. एंड जो सबसे पुराना पब्लिशर इंडिया में जो स्पिरिचुअल बुक्स को छापता था, उसका नाम है गीता प्रेस गोरखपुर. करेक्ट. अभी भी वही है स्पिरिचुअल में. जनरली इट इज सेड कि उसकी भगवत गीता, हाँ, उसकी स्पिरिचुअल बुक खरीदो, गीता प्रेस की स्पिरिचुअल बुक. तो ये बहुत बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, लेकिन उस इकोनॉमिक एक्टिविटी की कंसोलिडेशन कहीं नहीं थी. ओके, सो दैट्स वेयर यू फाउंड योर निश. अब मैं अकेला तो कुछ नहीं कर सकता था, तो व्हाट आई थॉट कि जो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं उनको अगर मैं एक प्लेटफॉर्म पे लेके आता हूँ तो मैं इस इकोनॉमिक एक्टिविटी को मूव कर सकता हूँ. ओके. And that's how Astha channel started. So sir, are you spiritual, religious, or atheist? What you are? Well, I am spiritual. Okay. But I am not into bhakti. Okay, got it. So I believe in God. Yeah. Right? But there is no form. आप कहें कि ये, yes, I believe in everything, right? So there is something which is spirituality has come from spirit. So if you start realizing your spirit, you start feeling your spirit, you become spiritual. Correct. And what is that spirit? तो अब मैं आपसे एक बहुत छोटा सा शेयर करता हूँ इंसिडेंट. हम लोग तीर्थ पे जाते हैं, बहुत दूर तक जाते हैं, और जब भगवान के सामने खड़े होते हैं, तो जैसे ही हम इतना दूर चल के गए, भगवान के सामने खड़े होके आप आंख क्यों बंद करते हैं? करेक्ट. कभी आपने रियलाइज किया? नहीं. नहीं. तो व्हेन यू क्लोज, ऑटोमेटिकली आपको ऐसे अपने आप ही लगेगा कि जैसे ही आप भगवान के सामने खड़े हैं और आपने आंख बंद कर दी. करेक्ट. बिकॉज दैट इज द टाइम व्हेन यू फील योर ओन स्पिरिट. राइट. एग्री. कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली जब आप इतनी जबरदस्त एनर्जी वाली जगह पे जा रहे हैं, राइट, अ प्लेस व्हिच इज फुल ऑफ एनर्जी, राइट, तो आपकी आंखें बंद हो जाती हैं, बिकॉज देन यू स्टार्ट फीलिंग एनर्जी विद इन यू. करेक्ट. और सर जनरली परसेप्शन होता है कि आस्था चैनल इज ओनली वॉच्ड और व्यूड बाय द एल्डर्स, एजेड पीपल. सो इज दैट ट्रू और नो? या बट लेटर अभी भी आप देखिए तो सबने अपना अपना टाइम बैंड बांटा हुआ है, जिसमें यंग भी हैं, सबके अपने अपने जॉनर के प्रोग्राम्स बने हुए हैं, सब अपने हिसाब से देखते हैं. उनके अब एक सवाल किसी ने पूछा
कि साहब आप मेडिटेशन बताइए, मेडिटेशन कैसे करते हैं, मेडिटेशन क्या होता है, हमसे मेडिटेशन नहीं होता। करेक्ट है? करेक्ट। तो किसी वो लोग बात कर रहे थे कि मेडिटेशन मैं करना चाहता हूँ, मेडिटेशन होता नहीं है। राइट। तो मैंने कहा कि आपको मैं एक ही चीज बताता हूँ कि आप यू आर एक्सपर्ट इन मेडिटेशन। करेक्ट। तो वो कहते कैसे? मैंने कहा स्पेशली आप अपने घर पे देखिए अपनी मम्मी को, राइट? वो कहीं पे भी होगी, अगर उसने दूध चढ़ाया हुआ है स्टोव पे, वो कहीं पे भी होगी, दूध उबलने वाला होगा, वो वहां आ जाएगी। वो कैसे? उसके अंदर उसका जो ध्यान है, वो दूध पे लगा हुआ है। सही है। तो मेडिटेशन का मतलब ध्यान, राइट? आप किसी चीज पे भी ध्यान लगाइए, दैट इज योर मेडिटेशन। यू आर डूइंग मेडिटेशन ऑल द टाइम। करेक्ट है? अब मान लीजिए कि मैं आपसे 7 बजे मेरे को मिलना है, तो मैंने सोचना शुरू कर दिया, मेरा ध्यान लगना शुरू हो गया कि मुझे क्या बात करनी है, मुझे कैसे बात करनी है, मतलब ये सब सोचना शुरू हो गया। जो मैं ध्यान कर रहा हूँ, दिस इज मेडिटेशन। तो इसी तरह से आप किसी को मानते हैं और आपका इंटरेस्ट है, जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, आपके स्टेट्स नहीं होंगे, तब तक आप मेडिटेट कर ही नहीं सकते। करेक्ट। So like writing, reading can also be a meditation for few. It's the highest degree. Right. Yes. And sir, satellite broadcasting में इतने 50 years almost, you never felt to sit in the real satellite and visit some other planet? Oh, I wish. मैं वो देखता रहता हूँ कि कब मार्स पे लैंडिंग होगी। मैंने देखे आपके नासा के फोटोज देखे। तो वो यस ऑफ कोर्स लगता है कि जाना चाहिए, वो एम्बिशन रहते ही है। लेकिन वंस अगेन मेरा मंत्र वही है मेरा अपने लिए, राइट? कि मैं वो काम करूं, वो वहां पे जाऊं जहां पे और कोई ना गया। So yeah, coming back to health and welfare channel. Healthcare पे भी वही था कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी जो लोग चाहते हुए भी नहीं। खैर अभी तो आई एम टॉकिंग अबाउट 12 years ago, अभी तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप गूगल कर सकते हैं, आप कई सारे ऐप्स हैं, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। लेकिन उस वक्त हेल्थ पे इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करना बहुत लो मार्केट काम माना जाता था कि और सर हेल्थ का काम इट्स ओके सर, हर कोई अपनी हेल्थ का ध्यान रखता है, बट जो ज्यादा केयर करते हैं जनरली सोसाइटी टैग्स दैट पर्सन एज एन ओवर केयरिंग फॉर दी हेल्थ, और डरा हुआ इंसान जो खुद की बहुत ध्यान रखता है, जनरली वी टैग, इट्स नॉट अ गुड टैग दैट सोसाइटी गिव्स. And in that you know thought of bringing this health and wellness to the television channel, and that too it has its own app also, right? Where you featured one of my video also. Yes. I am very fortunate. Yeah, so how does that go, sir? तो उसमें एक होता है कि एक इंफॉर्मेशन ये होती है कि आई नीड दैट इंफॉर्मेशन, राइट? दूसरी इंफॉर्मेशन होती है how do I know that you need it? There is a difference, right?
तो Right. अब उसके अंदर जब इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट कर रहे हैं, हाउ वेल यू कैन डिसेमिनेट मीन, अगर जो जिसको चाहिए, क्या वो ढूंढता हुआ आपके प्लेटफॉर्म तक आएगा उस इंफॉर्मेशन को ढूंढता हुआ? और अगर नहीं आ रहा है वो ढूंढता हुआ, तो आप उस तक कैसे पहुंचेंगे कि मैं आपको ये इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ, राइट? तो उसमें कितने सारे फॉर्म्स, फॉर्मेट बना के हम लोगों ने उसको मैंने उसको कंसीव करना शुरू किया कि कैसे आप उसमें इंटरेस्ट लेंगे। अब मैंने जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक मैंने सीरीज शुरू की थी अपने चैनल पे, इट वाज कॉल्ड 100 डेज ऑफ डाइट प्लान, और मैंने कहा था कि लूज 10 kg। तो लूज 10 kg 100 डेज डाइट प्लान, तो मेरा 100 डेज व्यूइंग वाज एंश्योर्ड। या परफेक्ट, करेक्ट। राइट, तो उसके अंदर कुछ सेलिब्रिटी भी आ गई। हाँ, this is your thing where you are always apt and ahead, on toes on your thinking, conceptualizing of the various programs which the channel boasts about. Right, that's right. Thank you. And अब ये जो है इतना छोटा छोटा एक इंटरेस्ट के साथ था, तो जब ये चल रहा था, तो अब बहुत सारी हमारे कंट्री में आयुर्वेद भी है, होम्योपैथ भी है, यूनानी भी है, राइट? तो इन सबको भी मैंने इकट्ठा कर लिया। Okay. तो मैंने कहा कि वो ये कहते थे कि साहब हमारा आयुर्वेद चल नहीं रहा, हमारा यूनानी चलता नहीं है। तो मैंने कहा चलता नहीं है बिकॉज पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ योर साइंस। तो उसके लिए मैंने सीरीज बनाना शुरू किया है। टॉप एक्सपर्ट स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर पैथी। लवली, ओके। तो that's how you reach to the audience. How I reach to the audience, and then वो जैसे जैसे वो सुनते जा रहे थे, जैसे जैसे वो तो मैंने एक कॉल सेंटर भी बना दिया। तो अच्छा। तो अगर किसी को यूनानी से बात करनी है, सिद्धा से बात करनी है, एक्यूपंक्चर वाले से बात करनी है, तो दे कुड कॉल एंड उसको फिर हम लोग आगे कनेक्ट कर देते थे। अच्छा, lovely. And sir, how it feels like you have so many caps? Do you have more than 24 hours or more than 2 hands? I don't know. आप आस्था channel, spirituality, you go with you work with the Z TV, CMM Music, Asia Music, all different zone and so many things, and now you're working with the app. So how do you do that, and how do you feel like some different things? Yeah, it is very interesting, but there is only one mantra. I would say there is only one mantra. First, I ask myself, if I am doing health channel, I am doing spiritual channel, I am doing music channel, yes, क्या मैं उसको खुद देखूंगा? You got it? yes. कि मैं क्या खुद उसको देखना पसंद करूंगा? अगर मुझे वो देखना अच्छा लग रहा है, आई विल वर्क ऑन इट। तो अब मैं बताऊं कि एक इतना जबरदस्त इंसिडेंट हुआ जब ये पैंडेमिक शुरू हुआ, तो हर एक आदमी टेंस था, right. एक फियर, एंड ऐसा लग रहा था कि एवरीवन वाज स्केयर्ड, और ऐसा लग रहा था कि मौत जो है वो ऐसा सड़क पे चल रही है, सन्नाटा एकदम, ऐसा एटमॉस्फेयर बन गया था। किसी से भी बात करो तो वो कहता था कि आप लोग सेफ तो हो, आप लोग, अभी भी यही होता है, आप लोग सेफ तो हो, कहाँ हो? अच्छा अहमदाबाद, ओ माय गॉड, इट वाज लाइक इस तरह के रिएक्शंस आते थे। तो मैंने सोचा कि क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ
कि थोड़े वक्त के लिए तो मुस्कुरा दो, हम्म, थोड़ी देर के लिए अपना स्ट्रेस कम कर लो, थोड़ी सही देर है, के लिए कुछ और सोचो। अब जितने भी न्यूज चैनल हैं, दे एक्चुअली फॉर्म 70% ऑफ योर अटेंशन टुडे। करेक्ट, करेक्ट, और वो राइट, 70% जो है वो जाता है आज की डेट के अंदर सिर्फ 4 टॉपिक: पैंडेमिक, इंडिया चाइना रिलेशन, राइट, राइट, देन किलिंग ऑफ गैंगस्टर एंड करेक्ट, पॉलिटिकल सिनेरियो, करेक्ट, राइट। इसके अलावा कुछ ऐसा लगता है दुनिया में कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं है, सही है, तो तो क्या मैं आपके साथ मैं आपको कुछ ऐसा प्रेजेंट कर सकता हूं कि जिससे 1 सेकंड, 10 सेकंड, 30 सेकंड आप मुस्कुरा तो दें? करेक्ट सही है। है, क्योंकि मुझे अभी तो न्यूज मैं न्यूज भी लगाओ तो, हाँ, अभी आप न्यूज भी लगाओ, हर जगह वो डेथ बिकॉज ऑफ पैंडेमिक, बिकॉज ऑफ कोरोना और सुसाइड, वही सब न्यूज चलती रहती है। देयर इज, so yes, of course, if we are able to laugh or smile in this situation for even 10 seconds, करेक्ट। that is great. तो अब मैंने सोचा कि क्या मैं आपकी जिंदगी में थोड़ा, अब मैंने एक क्लिक भी किया था फोटो, तो उसका जो मैंने कहा था चीज, वो ठीक से मुस्कुरा भी नहीं पाई। अब मेरे को फोटो क्लिक अच्छा, करनी पड़ी। अच्छा, तो मैंने कहा कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि अब शूटिंग कर नहीं सकता था, तो right, ऐसा क्या काम है जो घर में बैठ के किया जा सकता है। right, तो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन जोक्स, okay, जोक्स की स्क्रिप्ट्स बनानी शुरू की, और वो मैंने अपने फ्रेंड्स को दी जो ऑडियो स्टूडियो में काम करते हैं। right, और ऑडियो स्टूडियो में तो यू डोंट नीड शूटिंग एंड लाइट्स एंड right, right, all right, those things, yeah, and they yeah, are today they are the best voices of all India radio, right? lovely, तो वो उनको मैंने गैदर करके एक स्टूडियो में मैं एक के बाद एक जोक के ट्रैक्स रिकॉर्ड करता गया, मींस जोक्स को कनेक्ट कराना शुरू किया। right, और इस तरह से मैंने बहुत सारे ट्रैक्स बना लिए और उसको एक ऐप में कॉन्फ़िगर कर दिया। डाल दिया, correct. उस ऐप का नाम है टर्टर, यू नो, लाइक Sir, अ that फ्रॉग, is, yeah, अ turtle. फ्रॉग। Yes, frog, frog. So how did that name come up with you? So because that app keeps doing turtle all the time. So so the moment you click, you start listening to jokes, and one after the other until you say no, and you can listen to this without any cost, without, it's all Cost, free, free. right? So it's started picking up very fast, and Lovely, वो करते करते अभी with your wishes, people are liking it, और अब lovely. let's see, You अगर ये are, अच्छा अच्छा हो जाता है तो next I will do Gujarati, then I'll are do we Marathi, love it. Lovely, and then I'll doing Punjabi. lovely. So you are spreading happiness in all the languages without cost. Yeah, Spreading but smiles. I am Lovely. I'm trying my best. Yeah, sir, you yourself are an avid reader. I would also like to know which kind of books do you read, and if given a chance, would you come up with some literary channel, satellite broadcasting? Yes, of course. This is, you have touched something very interesting. Actually, I have already started working on uh, storybooks, right? Oh, lovely. And Okay. the uh, the tales and stories, right? Hmm. So what happens is that these stories are, as everyone says, that they are mirror of our society, Hmm. right? Hmm. तो Hmm. उसके अंदर कितने सारे कैरेक्टर्स होते हैं। तो एक मैंने अपने जो
परफॉर्मर ग्रुप्स हैं, तो उन लोगों ने एक एक करके स्टोरीज इकट्ठी करनी शुरू की। ओके। और स्टोरी नरेशन का सेशन करते हैं। अब राइट एक स्टोरी के अंदर कई सारे कैरेक्टर्स हैं, राइट तो वो एक मोनोलॉग की तरह से स्टोरी को नरेट करते हैं, नॉट एज सिंपल रीडिंग। ओके ओके एक्सक्यूज मी। या एक सिंपल रीडिंग होती है वो नहीं, ओके जो वो कैरेक्टर्स होते हैं उसको बनाते हुए चलते हैं, तो अलग उसमें अलग स्पीच, हाँ उसकी अलग अलग आवाज, देयर स्पीच, देयर टोन, एवरीथिंग। हाँ, तो अब जैसे उसके अंदर जो है सटायर भी है, उसके अंदर इमोशंस भी हैं, लव स्टोरीज भी हैं, इस तरह से बहुत सारी स्टोरीज मैं इकट्ठी करता जा रहा हूँ और उसको कनेक्ट कर रहा हूँ, ओके बट विथ सिंगल वॉइस। ओके ओके, वन वॉइस विद डिफरेंट पिच एंड टोन। तो but it is a reading. Yeah, Essentially, right, it is the reading of a book. right. Okay. Okay, that's lovely, wonderful knowing your experiences in different sectors. Sir, how do you have worked with foreign ministry also, where at the time of 1990, where foreign travel was very luxurious thing. So tell us some experience of it. Well, हम लोग जो बहुत सारे एक तरह का ना ये डिप्लोमेटिक मिशन होता था, और डिप्लोमेटिक मिशन में एक उसका हिस्सा होता था, उसको कहते थे कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम, CEPs, राइट। तो उसको उधर में रिप्रेजेंट करता था, और उस CEP में कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम में एक और हिस्सा होता था, वो था इंडियन मूवीज का। ओके जिसके अंदर इंडिया की हर एक लैंग्वेज की मूवीज को सिलेक्ट करके मैं ले जाता था दूसरी कंट्रीज में, उसको प्ले करते थे, और वहां से उनकी फिल्म्स में वापस इंडिया लेके आता था। तो आपने सुना होगा कि हाँ, तो आपने सुना होगा ईरानियन फिल्म फेस्टिवल, इजिप्ट फिल्म फेस्टिवल, हंगेरियन फिल्म फेस्टिवल, वो सारी फिल्म्स उन दिनों में लेके आता था, एक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम, और वो हमारी फिल्म्स जो थे वो वहां पे लेके जाते थे। So sir, how it was traveling then and now? हाँ, तो हमारे हर जगह रिप्रेजेंटेशन होती थी, खास तौर से ऐसी कंट्रीज में जहाँ पे इंडियन फिल्म्स को रोक दिया जाता था। तो आई रिमेम्बर इट वाज 1994 जब मैं इजिप्ट गया था एंड सीरिया गया था। तो सीरिया में जो उन्होंने लास्ट इंडियन फिल्म देखी थी वो श्री 420। उसके बाद उन्होंने कोई इंडियन मूवी नहीं, क्योंकि वो इंडियन मूवीज को देखना बंद हो गए थे। तो वहां पे मैं लेके गया था, तो बहुत सारे लोग आए, उन्होंने मेरा जूता है जापानी से लेके बहुत सारे गाने भी सुनाए हम लोगों को। सो आई रियली लव्ड इट। और हमारे जो हमारा फेस्टिवल चला, इंडियन फिल्म फेस्टिवल इन सीरिया, वो कितना भीड़ लगी थी वो मैं बता नहीं सकता। उसका उल्टा क्या हुआ कि मैं और अडूर गोपालकृष्णन, मैं अडूर की एक फिल्म लेके ईरान गया था, और वहाँ पे उसको डिस्प्ले करना था। तो सबसे पहले तो क्योंकि ईरान में it was most difficult to show Indian movie. Okay. Because of their censorship and बहुत सारे उनके conditions थे। तो जो मुझे सबसे अच्छी फिल्म लगी थी अडूर की, तो मैंने अडूर को कहा कि हम दोनों इकट्ठे चलते हैं and we'll talk about movie and you talk about all these things. तो
एक नया सब्जेक्ट था, तो उसको लेके हम लोग गए थे। तो उस मूवी का जो लेंथ थी वो थी 1 hour 45 minutes। हाँ, वो मलयाली फिल्म थी। और वहाँ पे गए तो जब तेहरान में, तो हम लोगों को कहा गया कि हम मूवी दिखा देंगे, आप अपना होटल में रहो। ओह। तो अडूर स्टार्टेड हेटिंग प्रूफ कि ये कैसे हो सकता है, मेरी मूवी है, आई हैव टू टॉक अबाउट इट। एग्जैक्टली। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा करना पड़ेगा, तो ठीक है आपको हम लेके चलते हैं। तो लेके गए, अडूर ने अपनी मूवी के बारे में बात की, उसके बगल में बैठ के उसने उसका ट्रांसलेट करके उसको सारा समझा दिया। तो अब हमने कहा फिल्म दिखाओ, कहते नहीं अब आप होटल जाइए। तो मैंने कहा कि ऐसे कैसे होटल जाइए, आपने कहा, तो कहते कि देखिए आपने कहा था आप मूवी के बारे में बात करना चाहते हैं, वी अलाउड, बट वी डोंट अलाउ टू वॉच योर मूवी विद आवर पीपल। आपने ये तो नहीं कहा था ना कि आपको ऐसा करना है, आपको कहा था, आपने कहा था आप अपनी मूवी के बारे में बताओ जाओ। अब अडूर जो था, he was furious कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो उसने कहा कि अच्छा हम अंदर नहीं बैठ सकते, तो नहीं बैठ सकते, तो हम बाहर बैठ जाएं। कहते दैट इज योर विश, आप बाहर बैठ जाइए, कोई बात नहीं। हम लोग बाहर बैठ गए। अब बाहर बैठ के हमने कहा कि जब मूवी खत्म हो जाएगी तो हम देखेंगे कि लोग कैसे कैसे आ रहे हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, यू नो ऑल दोस थिंग्स वर गोइंग ऑन इन आवर माइंड। तो वो जो मूवी थी वो कोशा 45 मिनट में खत्म हो गई। ओह, 1 hour 45 minutes की जगह 45 minutes। हाँ, और सारे लोग अपना बाहर चले गए कि फिल्म खत्म हो गई। एंड वी कुड नॉट आस्क, वी थॉट कि इन्होंने ब्रेक किया है, क्या किया है, वो जी शो खत्म हो गया। we kept we went running to those guys कि ये क्या हुआ। कहते हैं कि जितना हमें दिखाना होता है ना, हमने वो दिखा दिया। ओह। So that was one experience I could never forget. Never so forget that it. came as a real surprise. So sir, Anyway, you might be knowing कितनी सारी मूवीज आपको पता होगी जो कि फेमिलियर नहीं है या फेमस नहीं है, बट येट दे आर वेरी गुड मूवीज। तो आप are you thinking on any app like this joke app, Turtle app, where you put on this movie things, movie reviews or a short description about the movie? दिस इज अ वेरी गुड आइडिया कोशा। लेकिन मूवीज का एक सबसे बड़ा है कि मूवीज के लिए बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल I agree. Yeah. और उसमें अभी हाँ एक बड़ा अच्छा लग रहा था वो, एक्चुअली दैट सजेशन केम फ्रॉम यू, कि जो फिल्म क्रिटिक्स होते हैं उनका एक प्लेटफॉर्म बनाना है, which I am working on. Lovely. Okay. And sir, what do you read? Which are your favorite books? You are an avid reader too, so tell us about it. Sorry, I couldn't get you. Okay. You yourself are an avid reader. So which kind of books do you read? Apart from the storytelling which you are trying to bring up. Well, once again, I'm a story man. Even if I'm reading something which is related to storytelling in different form. Right. Maybe it's a travelogue. Yeah. Or anything related to and characterization, characters. There are many books I have been reading of late. They are talking about various
historical characters, what happened with them. Correct. So, you know, their own interpretation Right. of various incidents. Right. So Okay. this Sir, I'm writing is sure. nothing but Yeah. but it is a piece of writing. I would say this is called creative interpretation of an actuality. That is my book. Okay. Lovely. And I heard that you write also. So if you can narrate 2 lines, what you have written something. Well, I I write 4 lines when I feel like. Uh, I can So this is if fine. Yeah. but I have not been writing long pieces, but Okay. but there is something which is like it's coming from inside, right? But I, as if I want to express something, and then I uh, either I write or say. It's like that. So अभी एक just 4 lines. Yes. आईना आज फिर, आईना आज फिर, आईना शीशा. Yeah. Mirror. Yeah. आईना आज फिर रिश्वत लेते पकड़ा गया. आईना आज फिर रिश्वत लेते पकड़ा गया. दिल में दर्द था, दिल में दर्द था, और चेहरा हंसता हुआ पकड़ा गया. अरे वाह, वाह जी. Superb. Superb. तो there is Yeah. You write feel. that short. Yeah. So अब I am talking to you. So this is also related to one of the thing which I wrote. खुशबुओं को फैलने का शौक है. जो खुशबू है वो फैलती है. सही है. खुशबुओं को फैलने का शौक है, लेकिन मुमकिन नहीं बिना हवाओं से रिश्ता बनाए. सही है. जब तक you don't get air, proper air, खुशबू फैलेगी ही नहीं. So if you don't be in proper company, you will not grow. तो आपको मैं इसीलिए कहता हूँ कि अहमदाबाद बुक जो क्लब है और उसका कॉस्मोस और कॉस्मोस की कोशा आपने मुझे इनवाइट किया, तो मुझे तो हवा मिली ना. Perfect. So we also got the same way. It is other way around. Sir, you shared so many experiences. I'm sure my viewers might have put comments and questions. I would ask my technical partner Vivek to pop up the questions from the viewers or the comments. Vivek, if you can do. Okay, first one is from Ashwani Vashne. What inspires you to work in satellite broadcast domain? Hi, Ashwani. Actually, as I said, I've been saying all the time, I do something which is new and nobody else has worked in it. And when I started working with the group for satellite broadcast, उससे पहले किसी ने इस डोमेन में काम नहीं किया था. तो एक छोटा सा ग्रुप था हम लोगों का जिन्होंने सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट शुरू किया इंडिया में फ्रॉम स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद. राइट. अनदर क्वेश्चन विवेक. What is your success mantra? Actually,
एज आई सेड, सक्सेस मंत्रा जो है वो एक ही रहा है मेरे लिए, और वो ये है कि मैं कुछ भी काम करूं, पहले वो काम मुझे पसंद आना चाहिए. सही है. आई डोंट वांट टू प्लीज अदर्स. मेरे को किसी Correct. दूसरे को खुश करने के लिए काम नहीं करना. सबसे पहले अगर मैं वो काम करके खुद खुश हो रहा हूं, then definitely Then I'm sure it is going to be a great success. lovely, lovely. Okay, next one, Vivek. Uh, how had you had shaped up yourself in the radical transformation of broadcasting industry over the period of time? It's it's the same thing, Ashwani. वो जो चेंज है, वो जो शिफ्ट है, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो अपने आप आता चला जाता है. वंस यू आर इन्वॉल्व इन सम वर्क, तो आप खुद ही उसमें ग्रेजुएट होना शुरू हो जाते हैं, उसी में ही आप ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाते हैं. Transform. हाँ, Correct. I have never allowed anyone else to influence me. Lovely. I have to convince myself. If I am convinced, I am happy, I am transformed. Lovely. But Okay. but if someone is telling me, oh, you should be doing this, you should, so I, something very shabby though, You feel but मैं उन लोगों को कहता हूँ कि they are part of my सुझावन लाल committee. new word. So I listen to them. I feel good Okay. that someone is giving me advices, but I have to convince myself because I'm going to do work, Right. so if I'm going to do work and I'm not happy, Then there तो is no use. अश्विनी आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, अगर मैं खुद ही खुश नहीं हूं तो मैं आपको खुश कहां से करूंगा. So, sir, it's अगर like you कोशा मेरी listen to बात से every. खुश नहीं हो रही है, कोशा कह रही है कि क्या बात कर रहा है, तो मैं कितनी मेहनत कर लूं, I won't be That's successful. correct. So it's like you listen to everyone but follow no one. You have to convince yourself, and Correct. if you feel that, it's a feeling. Right. And सारा Okay. सारा जो यूनिवर्स है वो एक ही चीज पे चल रहा है, आजाद. वो है फील, Correct. वो है भावना. राइट. अगर मैं अपनी भावना खुद नहीं समझ पा रहा हूं, तो मैं दूसरे को क्या समझाऊंगा. समझा ही नहीं पाओगे. राइट. ओके. और मैं एक्सपेक्ट करूं, कोशा, मैं एक्सपेक्ट करूं कि जो मैं बोल रहा हूं वो आपको समझ में आएगा. तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता. नहीं हो सकता. यस. नेक्स्ट प्लीज विवेक. Another please, if you can put up. Vivek, one more, if any comment or question. उसमें दो चीजें ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री में दो स्ट्रीम्स होती हैं स्किल्स की. राइट. एक होती है टेक्निकल, जिसके अंदर आप इंजीनियर हैं, टेक्नीशियन हैं, योर एडिटर, योर कैमरामैन. एक तो ये वाली स्ट्रीम होती है, और दूसरी होती है क्रिएशन की. आपको मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ. इंटरेस्टिंग चीज इसलिए कि मुझे बड़ा मजा आता है वो सोच के कि एक जमाने में क्रिएटिविटी वाज अहेड देन टेक्नोलॉजी. तो क्रिएटिविटी क्या कहती थी कि मुझे यहाँ पे मुगले आजम का सेट बनाना है. करेक्ट है. तो टेक्नोलॉजी लग जाती थी कि उसको वो मुगले आजम का सेट बनाना है. उसको नवरंग की मूवी के अंदर एक पॉन्ड के पास डांसर को लेके आना है और उसको परफॉर्म करना है. अब वो पॉन्ड कहाँ बनेगा, डांसर कैसे आएगी, कहाँ आएगी,
वो टेक्नोलॉजी पे करती थी। आज सब चेंज हो गया है। आज टेक्नोलॉजी हमारे सामने है, वो क्रिएटिव लोगों को कह रही है कि लुक, दिस इज अवेलेबल, नाउ यू क्रिएट स्टोरी। नाउ यू डू। तो सही है। अब वो स्टोरी के अंदर आप एवतार बना लेते हैं, राइट, बिकॉज टेक्नोलॉजी इज देयर, यू स्टार्ट थिंकिंग। तो अब राइट, ये जो दो स्ट्रीम्स हैं, एक क्रिएटर की स्ट्रीम है और एक टेक्नोलॉजी की स्ट्रीम है। तो सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि आप क्रिएटिविटी में जाना चाहते हैं या टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं। राइट। और अगर आप क्रिएटिव में जाना चाहते हैं तो क्रिएटिव, चाहे आप एक बुक लिख रहे हैं, चाहे आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो एक अलग से स्ट्रीम होती है। बट इन दोनों को मिला दें, दोनों स्ट्रीम्स को मिला दें, तो फिर एक ही स्किल की जरूरत होती है, वो है इमोशंस। करेक्ट। ओके, लवली। Vivek, I guess, sir, we are overboard the time. This stream may complete the session. So, other comments and other questions we would love to answer, but in the video, which will be there on our page, Ahmedabad Book Club. And I would really like to thank you for sharing such wonderful experiences. We all are so happy and definitely looking forward for many more such information and experiences from your end, and the guidance to our club also, Ahmedabad Book Club. And I thank all my viewers who keep us encouraging to find such new stories, new chapters, new personalities, and come up with them. So I thank you, Kosha and Ahmedabad Book Club and everyone who has helped you to do this session. It's my pleasure. I'm really thankful to everyone and everyone for listening to me. Actually, well, I never thought that what I'm going to speak, you have actually motivated me and helped me to share my thoughts. Yeah, sir, I liked so one. Most welcome, sir. And I like one thing that you were, following the Ahmedabad Book Club, its work, its sessions, and so long, and then you agreed to come up here as a guest and speak and share your experiences. So thanks so much and keep supporting the club. Thank you, everyone. Bye-bye. Stay safe. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. Okay. Bye-bye.